Hello students, today I am going to discuss with you this poem, The Tale of Custard the Dragon. This is a poem from class 10th English textbook, The First Flight. And this is tale means कहानी है एक कस्टर्ड नाम के ड्रैगन की इन अ पोइटिक फॉर्म. तो एक पोएम के रूप में एक कहानी बताई गई है एक ड्रैगन की जिसका नाम है कस्टर्ड. Okay, first of all I will discuss some information about the poet. So the poet is Frederick Ogden Nash, and he was an American poet and famous for his light verse. हल्की फुल्की poems लिखने के लिए famous थे. He was known as producer of humorous poetry and he received Sarah Joseph Hale Award in 1964. So here is a small introduction to this poem. Ogden Nash has written a poem about a little girl, Belinda. Belinda is a little girl who owns many pets. बहुत सारे pets हैं उसके पास, namely a black kitten named Dink, grey mouse named Blink, yellow dog named Mustard and a coward dragon named Custard. Yes, एक custard नाम का dragon भी है उसका एक pet. The poet has described every character to be brave except dragon who is a coward. Okay, जो ड्रैगन है वो यहाँ कावर्ड बताया गया है. बट द होल सिचुएशन changes when a pirate attacked Belinda's house. No one else had the guts to face him. It was the dragon that killed the pirate. And all the characters are happy because they are saved by the dragon, but quickly change their thoughts and describe themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all of them. So let us start this poem, students. So here is poem. Stanza 1. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a realio trulio little pet dragon. So students, Belinda is a small girl जो एक वाइट हाउस में रहती हैं. उनका छोटा सा एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है, एक येलो डॉग है और एक लिटिल रेड वैगन भी है. वैगन क्या होती है? व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स. एक छोटा सा उसके पास व्हीकल भी है. ओके, तो ये सारी चीज़ें उनके पास यहाँ पर हैं. एंड रियालियो ट्रूलियो. अब ये वर्ड जो है ना, रियालियो और ट्रूलियो, नॉर्मली ये वर्ड नहीं होते, ठीक है, लेकिन पोएट ने इसको यूज़ किया है. इट मीन्स पोएट हैज़ द पोएटिक लाइसेंस. अब वो क्या होता है आगे मैं बताऊंगी आपको. सो द लिटरेरी डिवाइसेस. राइम स्कीम क्या है? AABB. लाइक हाउस जो है वो माउस से एक लाइन में हाउस, अगली लाइन में माउस. सी यहाँ पर देखिए, सी हाउस माउस. सो A हम एक जैसे साउंड को एक अल्फ़ाबेट देते हैं. देन वैगन ड्रैगन, B सेम साउंड्स को सेम अल्फ़ाबेट. सो दिस इज़ द राइम स्कीम. ओके, देन देर इज़ रेपिटेशन. use of the word little grey mouse, little dog, all these. Then oxymoron means use of two words. अगर आपने poetic devices का मेरा वीडियो देखा होगा तो you will come to know oxymoron is a poetic device. Okay, मतलब दो opposite words को साथ साथ यूज़ करना. जैसे pet dragon कभी pet नहीं होता किसी का. Then anaphora means repeated use of word at the start of two consecutive lines, like and a little, and a realio, and को use हो रहा है. Then there is refrain. Repetition of a sentence again and again, and realio trulio. Now here comes poetic license. Realio and trulio for real and true. Normal जो word है वो real है और true है, लेकिन poet इसकी spellings को change कर सकता है. ये license सबके पास नहीं होता, ये poets के पास ही होता है बेटा, ये वाला license. मतलब poet एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट देने के लिए या किसी चीज़ को एम्फसाइज़ करने के लिए किसी भी वर्ड की स्पेलिंग के साथ थोड़ा बहुत वो हेर फेर कर सकते हैं, मगर ये लाइसेंस पोएट्स को ही है, आपको नहीं है, आप नहीं करेंगे. सो दिस इज़ नोन एज पोएटिक लाइसेंस. ये स्टूडेंट्स, ये वाली जो पोएम है ये थोड़ी सी लंबी है, वीडियो भी थोड़ा सा इसका लेंदी बनेगा. सो फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम यू हैव टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड. सो हियर वी हैव स्टैंजा 2. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink. So the name of the kitten is Ink, and for the little grey mouse इसकी पिक्चर भी दी हुई है इधर, वो है Blink. And the little yellow dog was sharp as mustard. Sharp as mustard means यहाँ पर yellow dog को mustard की तरह sharp बताया गया है. Means what? उसको mustard की तरह sharp बताया गया, यहाँ comparison किया गया है, simile है. But the dragon was a coward and she called him Custard. लेकिन जो ड्रैगन है
वो बताया गया है बहुत काउवर्ड. काउवर्ड मीन्स वीकलिंग. हियर इज द स्पेलिंग मीनिंग ऑफ द. सो मस्टर्ड इज़ अ येलो कलर्ड फ्लावर. सरसों, सॉरी ये सूरजमुखी, येलो कलर का फ्लावर जो सरसों का होता है, सॉरी नॉट सूरजमुखी कलर, सरसों का जो फूल होता है उसकी महक बहुत तेज़ होती है, उसका टेस्ट भी बहुत शार्प होता है. कावर्ड मीन्स वीकलिंग, कायर, डरपोक. Yes. So here is the literary devices. Again, the rhyme scheme is A A B B. Like ink is rhyming with blink and mustard with custard. Then there is simile. I have told you dog is compared to mustard because of its color. Because color सरसों के फूल का yellow होता है, तो dog का भी yellow color है. Alliteration is there. Coward and she called him custard. C का alliteration क्या होता है? Repetition of consonant sound. And there is anaphora. Repeated use of word at the start of two consecutive lines. And little grey, use of word little again and again. Okay, anaphora. Then we have this stanza 3. Here we have the picture of Custard. Custard the dragon had big sharp teeth. देख ही रहे हैं आप पिक्चर में, बड़े बड़े teeth हैं. And spikes on top of him and scales. Spike होती है नुकीली उसकी skin. एंड अंडरनीथ स्केल्स होते हैं जो रेप्टाइल्स या फिश के ऊपर एक उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं. अंडरनीथ माउथ लाइक अ फायर प्लेस. सिमिली है यहाँ पर. माउथ क्योंकि ड्रैगन मुंह से आग निकालता है, तो चिमनी की तरह, चिमनी फॉर नोज. ओके, तो मतलब उसके मुंह से, उसके नाक से वो धुआं और वो आग निकलती है. तो एंड रियालियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. तो जो उसके जो टो हैं, उसके जो पंजे हैं, उसके जो नाखून हैं, वो बिल्कुल डैगर, डैगर होता है शार्प नाइफ. ओके, सी स्पाइक्स थिन पॉइंटेड सरफेस. स्केल्स यहाँ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है बेटा. थिन बोनी प्लेट्स प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अंडरनीथ मीन्स नीचे. एंड फायर प्लेस मीन्स एन आउटडोर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक. येस, चिमनी जिसको बोलते हैं. एंड डैगर इज अ शार्प नाइफ. Then we have literary devices here is, see, here we have literary devices. So, what are the literary devices? Rhyme scheme, again A, A and B, B. Teeth, underneath, nose, toes. Simile, मैंने आपको बताया ड्रैगन का जो माउथ है वो कंपेयर किया गया है फायर प्लेस के साथ. देन देर इज़ रिफ्रेन, repetition of sentence again and again, like realio, trulio. Then there is metaphor, chimney for nose, nose is like the chimney. Okay, now see stanza 4. Belinda was as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. Belinda तो बहुत brave थी, full of beers. बैरल मीन्स ड्रम. एक ड्रम में बहुत सारे अगर बियर्स आ जाएं तो कितने ज़्यादा ब्रेव हो जाएंगे एक ही जगह अगर आप उनको रखें. तो बेलिंडा इतनी ब्रेव थी. इंक और ब्लिंक दे चेज लायंस. इंक कौन है? इंक है उनका किटन, और ब्लिंक माउस. लो वो इतने बहादुर हैं कि वो लायंस तक को भगा सकते हैं. लेकिन बेचारा मस्टर्ड तो इतना गुस्से वाला है, इतना ब्रेव है कि जैसे टाइगर को जब गुस्सा आता है तो वो कितना ब्रेव हो जाता है. तो मस्टर्ड एज सिमिली है इन सब में सिमिली है. उनकी बहादुरी को कंपेयर किया गया है. लेकिन जो कस्टर्ड है बेचारा, ही ऑलवेज क्राइज फॉर अ नाइफ सेफ केज. कहता मुझे तो एक पिंजरा सा बना दीजिए जिसमें मैं आराम से रहूँगा. बैरल इज ड्रम, चेस्ड होता है फॉलो करना, रेज मीन्स एंगर. यस, नाउ सी यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस हमारे कौन से हैं? राइम स्कीम तो वही है, सेम है, ए ए एंड बी बी. Beers, tears, rage and cage. Then there is alliteration. Belinda as brave as a barrel full of beers. So B की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है. Then there is simile. वो मैंने अभी आपको बताया. बेलिंडा की ब्रेवरी को बैरल फुल ऑफ बियर्स के साथ कंपेयर किया है, मस्टर्ड को फॉर एंग्री टाइगर. ओके, तो यहाँ पर क्या है? सिमिली है. Now see stanza 5. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Tickle होता है गुदगुदी करना. अब वो बार बार उसको छेड़ती है. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल. परसिवल क्या होता है? अ नाइट इन द किंग्स आर्दर कोर्ट. नाइट होता है लड़ाका जो होता है, जो लड़ते हैं, सैनिकों के लिए आता है. ओके, तो बेलिंडा उसको गुदगुदी करती हैं और बहुत गुदगुदी करती हैं. अनमर्सीफुल, बिना उसको ज़रा भी उसके ऊपर तरस खाए. इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड, वो उनको रूडली बुलाते हैं परसिवल.
तो बड़ा बहादुर है, ऐसे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, फिर सब उसका मजाक उड़ाते हैं और लिटिल वैगन में बैठ जाते हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो काउवर्डली ड्रैगन, यस ड्रैगन क्या बताया गया है, काउवर्ड। रियलियो एंड ट्रूलियो मीन्स रियलिटी में और ट्रूली वो है। Now see here the literary devices, again rhyme scheme is A A B B, then refrain is there, again trulio realio is using, then repetition is word of tickled him. There is allusion also, reference to any person or place. Allusion मतलब यहाँ पर नहीं है, वो रेफर कर रहे हैं किसी और प्लेस को. Then there is personification. Ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. Percival वो नाइट, ओके, तो वहाँ पे उसको पर्सोनीफाई किया गया है, उसको पर्सन का एक एट्रीब्यूट दिया गया है ड्रैगन को, लेकिन वो कर उसको मजाक में बुला रहे हैं पर्सिवल. देन कम्स स्टैंजा 6. यहाँ पर आपको पिक्चर मिलेगी उसके पेट डॉग की. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Belinda जो है बार बार उसके हाउस जस्ट शूकिंग, एंड ब्लिंक जो है वो कर रहा है वीक, ऐसी आवाज़ निकालता है माउस, ठीक है. इंक और जो मस्टर्ड है वो उसको पूछ रहे हैं कितनी एज हो गई तुम्हारी. व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइफ सेफ केज. गिगल मीन्स टू लाफ एंड वीक, हियर इट इज़ द साउंड मेड बाय द माउस. Now here is again the literary devices, rhyme scheme, the same. Onomatopoeia. Onomatopoeia means usage of sound words to create a dramatic effect. Giggled, weak. वैसे ये कोई word नहीं है. They are only just, these words are used to refer to the sounds. And then there is repetition. Custard cried for a nice safe cage. Nice safe cage. This line is also repeated. Then stanza 7. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled and they all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Window means window. उन्होंने देखा कि एक पायरेट, एक डाकू उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक नेस्टी साउंड सुनी. मस्टर्ड ने भी ग्राउल किया, फिर आसपास देखा. नेस्टी मीन्स बैड, अनप्लेजेंट साउंड. ग्राउल्ड मीन्स बाक, भौंकना था. पायरेट इज़ अ पर्सन हु रॉब शिप इन द सी. वैसे समुद्री डाकू को पायरेट कहते हैं. विंडा मीन्स यहाँ पर पोइटिक लाइसेंस है. विंडा कोई वर्ड नहीं है. विंडो के लिए म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए, राइम स्कीम के लिए यहाँ पर विंडा बेलिंडा के साथ, यहाँ पर बेलिंडा के साथ राइम करने के लिए विंडो की जगह पर पोइटिक लाइसेंस को यूज़ करते हुए पोएट ने यूज़ किया है वर्ड विंडा. ओके स्टूडेंट्स, now see literary devices again, same rhyme scheme. Consonants means use of consonant sound. Suddenly they heard a nasty sound, s. Okay, this use of consonant sound. Then onomatopoeia is also there. Okay, Mustard growled, mewed, like this. And then again poetic license is there, I have already discussed with you. Now stanza 8, इसमें ज़रा पायरेट की शक्ल भी दिखाई गई है. Pistol in his left hand, pistol in his right, okay, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. See, एक leg उसकी लकड़ी की है, एक ही पैर है. It was clear that the pirate meant no good. Pistol handgun है. Cutlass means a short sword with a curved blade. See, ये देखिए यहाँ पर ये है कटलास पकड़ा हुआ है, कर्व ब्लेड, एक हाथ भी नहीं लग रहा इसका, वहाँ पे ब्लेड है. ओके, एंड देन इज एक उसका डैगर. देखिए ज़रा, उसके एक हाथ में पूरा उसने डैगर पकड़ा हुआ है, मतलब दोनों हाथों में हथियार हैं, और एक जो लेग है उसकी वो लकड़ी की है, मीन्स ओरिजिनल लेग नहीं है उसकी. वन लेग इज मेड ऑफ वुड. Then again here literary devices same, AABB is the rhyme scheme. Right, bright, wood and good. Alliteration is there. Beard was black, he held his HH. Okay, then is imagery. An image is created about the appearance of the pirate. Okay, pirate कैसा दिख रहा है, वर्ड्स के साथ एक इमेज बनाई गई है. एक लेग वुड की है, एक हाथ में डैगर है, एक में वो कटलास है, तो ये सब कुछ चीज़ें बताई गई है. मीन्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, इमेज ऑफ पायरेट, पोएट हैज़ ट्राइड टू क्रिएट एन इमेज ऑफ पायरेट, एक पेन पोर्ट्रेट बना रहा है. देन stanza 9. Belinda paled and she cried help and help. Paled means डर गई, and she just
पहले बोला कि बहुत बहादुर है, नाउ शी इज क्राइंग फॉर हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। मस्टर्ड वहाँ से भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक तो जाकर छुप गया तल घर में, मतलब बॉटम में, कहीं जाके हाउस में, बेसमेंट में। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, माउस होल मीन्स बरो, माउस का जो होल होता है ना उसमें घुस गया। कौन? ब्लिंक। Then again we have this literary devices. Rhyme scheme AABB, help, yelp, household, mousehold. Transferred epithet is there. Terrified yelp. ट्रांसफर एपिथेट मीन्स जो एक वर्ड, एक जो इमोशन बताया जा रहा है, टेरिफाइड, एक क्रिएशन हो रही है, पूरा एक माहौल बनाना. ओके, देन देर इज रेपिटेशन, हेल्प इन हेल्प. देन पोएटिक लाइसेंस, यूज ऑफ द वर्ड माउस होल्ड टू राइम विद हाउस होल्ड. येस, माउस होल्ड, ये वर्ड को राइम किया गया है. देन इज स्टैंजा 10, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड. यस, कस्टर्ड जिसको कि बोला जाता था कि वो क्या है, वो है काउवर्ड. ही जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह आवाज आई. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन. डंजन क्या होती है? एक सेल. सेल मीन्स जेल. और उसने जैसे जेल की सलाखें होती हैं, लोहे की होती हैं, उनके ऊपर अगर आप ऐसे कुछ लगाओगे तो आपको वो उसके ऊपर से एक आवाज़ आती है जब लोहे के साथ कुछ टकराता है. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग, ऑल दीज आर ऑनोमेटोपिया. ये एक साउंड वर्ड्स हैं. ओके, विद अ डंजन, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. रॉबिन इज अ वर्ड, एक बर्ड है जो दूर से देख लेता है वॉर्म्स को और उसके ऊपर अटैक करके उनको खा लेता है. तो जब सभी छुप गए डर के मारे तो कस्टर्ड आया है. कस्टर्ड एक इंजन की तरह उड़ते हुए एकदम आया और उसने इधर इधर अपनी टेल से उसको पायरेट के ऊपर हमला किया. स्नॉटिंग मीन्स सी मेक अ सडन एक्सप्लोजिव साउंड. नाउ नोज से उसने एक साउंड बनाई. क्लैश्ड मीन्स ही फॉर. डंजन मीन्स अंडरग्राउंड प्रिजन. ओके, क्लैटर, साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर. ओके, ये जब ऑब्जेक्ट्स के मतलब आयरन की चीज़ों के ऊपर जब सलाखों को आप बजाओगे तो कैसी आवाज़ आती है, उसकी तरह की आवाज़ इसने क्रिएट की. सो अगेन लिटरेरी डिवाइसेस, राइम स्कीम इज AABB. Simile, sound of dragon is compared with the sound of engine. Clashed means his tail like irons in a dungeon. तो ये सारा कुछ वहाँ पर सिमिली है, ये साउंड्स हैं. देन देर इज ऑनोमेटोपिया. आई हैव टोल्ड यू टू क्रिएट क्लैटर, क्लैंक, जैगलिंग. तो एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए हैं. इमेजरी भी है. द अटैक ऑफ द ड्रैगन इज एक्सप्रेस्ड इन अ वे टू मेक एन इमेज. तो जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो सीधा आया, उसने हमला किया, तो ये सारी एक पिक्चर हमारे माइंड में एक इमेज बन रही है कि किस तरह से वो आया होगा और उसने अटैक किया होगा. Now see students stanza 11. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. So grog means a drink. Gulped होता है swallow करना, swallow करना. Okay, he fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. Pirate ने क्या किया, बेलिंडा के ड्रैगन के ऊपर ही gaped means mouth wide open. और फटाफट अपने ग्रॉक अपने पॉकेट में से एक फ्लैगन मीन्स एक वो होती है ना जैसे पानी पीने के लिए एक वो पुराने टाइप में एक उसकी होती थी. फ्लैगन होता है कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर इन विच ड्रिंक इज सोड. हाँ, ड्रिंक पानी या कुछ रखने के लिए वो निकाला और फटाफट उसने पिया उसको. एंड ही फायर्ड 2 बुलेट्स. 2 बुलेट्स उसने किसको फेंकी, कस्टर्ड के ऊपर हमला किया. बट कस्टर्ड ने उन दोनों को खा लिया, उसके तो अंदर से आग निकलती है. कस्टर्ड के ऊपर उन बुलेट्स ने कोई असर नहीं किया. Sees the students, this is a story. This is a story in a poetic form. पोएट ने कितने अच्छे से एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी आपके सामने रखी है. कितनी अच्छी अच्छी इसमें इमेजेस क्रिएट हो रही हैं. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. I really like the story. Then rhyme scheme is again A and B. Alliteration, gulped from grog, G का use हो रहा है. Then there is imagery. They have shown the reaction and actions made by the pirate on seeing the ड्रैगन. इमेजरी सारी बताई गई है कि ड्रैगन को देखते हुए कैसे एक्शन हुए और कैसे रिएक्शन हुए. देन वी हैव स्टेंजा 12. बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम. मतलब अब उसने क्या किया, गॉबल्ड हिम. उसने इसने ड्रैगन ने बुलेट्स को भी खा लिया और पायरेट को भी वो खा गया, स्वॉलो कर गया पायरेट को भी. अब बेलिंडा बाहर निकली एंड बेलिंडा एम्ब्रेस्ड मस्टर्ड, लिक्ड हिम. उसने उसको एम्ब्रेस कर लिया, हग कर लिया कि मुझे बचा लिया.
मस्टर्ड भी आके उसको लिकिंग करने लगा. नो वन मोर्न्ड फॉर द पायरेट विक्टिम. यस, मोर्न्ड होता है शोक मनाना. वो पायरेट जो कि विक्टिम बन चुका था, उसके लिए कोई भी शोक नहीं मना रहा था. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट. ग्ली होता है खुश होना, डिलाइट होना. एंड गायरेट मीन्स डांस. वो हंसते हुए डांस कर रहे हैं क्योंकि उनको भी तो बचा लिया इसने, कस्टर्ड ने. अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. देखिए पायरेट को वो खा चुका है, उसके आसपास डांस कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं. ठीक है. एम्ब्रेस्ड मीन्स टू हग, मोन मीन्स टू फील, शोक मनाना. एंड विक्टिम मीन्स सफरर. अब ये विक्टिम कौन है यहाँ पर? पायरेट. किसका विक्टिम बना? कस्टर्ड का. ओके. ग्ली मीन्स डिलाइट, गायरेट मीन्स डांस. ओके, लेट अस मूव अहेड. Here again the literary devices. Scheme is AABB. So whole poem rhyme scheme सब में AABB है. Alliteration is there. Glee, did, gyrate. Assonance, use of vowel sound O. Use of vowel sound I. Ink, blink. Then comes stanza 13. But presently up spoke little dog Mustard. अब वो सब खुशियाँ तो मना रहे हैं, लेकिन अब लिटिल डॉग जो था ना मस्टर्ड, उसने कुछ बोला. क्या बोला? आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड. कहते मैं तो बहुत बहादुर था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया. एंड अप स्पोक, फ्लस्टर मीन्स अपसेट, कंफ्यूज. कहते मैं तो कंफ्यूज हो गया, वरना पायरेट तो क्या चीज़ था, इसको तो मैं ऐसे ही उड़ा देता. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. अब इसमें इंक और ब्लिंक भी फिर बोले. वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव विथ इंक. कहते अरे तुमने जो ब्रेवरी दिखाई है, कस्टर्ड को कह रहे हैं, द ब्रेवरी विच यू हैव शोड, वी आर 3 times मोर ब्रेव देन यू. 3 times हम ज़्यादा ब्रेव हैं. एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री. कस्टर्ड कह रहा है येस येस, ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्रेव, आई नो दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. कस्टर्ड कह रहा है आई नो दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. कहते मैं ही एक काउवर्ड हूँ, बाकी आप सब तो बहुत क्या है, महान है, बहुत ब्रेव हैं. अब ब्रेव कौन है वो तो हमें पता चल गया है. कस्टर्ड, जिसको कि बार बार दे आर सेइंग दैट कस्टर्ड इज अ काउवर्ड एंड ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ द नाइस केज, सेफ केज. ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ सेफर केज, फॉर अ सेफर साइड. नाउ वी हैव कम टू नो दैट हु इज ब्रेव आफ्टर ऑल. ओके, rhyme scheme again is AA and BB. Then we have stanza 14. Belinda still lives in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. So still all of them are living in the same house happily. And a little yellow dog and a little red wagon. And really or truly a little pet dragon. ठीक है, ये सारे लोग वहीं हैं. अगेन ये वो सेम स्टिल लिव्स, बस यही एक वर्ड है, बाकी सारा फर्स्ट स्टेंजा का है. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज. अगेन वो यही कह रहा है कि कस्टर्ड तो आज भी सेफ्टी के लिए, कस्टर्ड तो आज भी सेफ्टी के लिए रोता है. सेफ्टी अगेन. But all of them are still brave. All of them are braver than custard. So here we have the literary devices. Refrain है यहाँ पर, repetition of a sentence again and again, realio, trulio. Then there is repetition. Stanza has been repeated. यहाँ पर मैंने बताया आपको कि लास्ट में सेम स्टेंजा को वापस रिपीट किया गया है एक सॉन्ग का, एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए. Okay students, now I think I have tried to explain each and every word to you. I have tried my best to explain this whole poem in a dramatic way. मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ गया, and I hope आपको सबको ये poem बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी. We have few question and answers also here. ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी. See like who are the characters in this poem. Like following are the characters: a little named a girl named Belinda, little black kitten whose name is Ink, little grey mouse whose name is जो है उसका नेम है ब्लिंक, डॉग का नेम है मस्टर्ड बिकॉज ही इज़ येलो इन कलर, एंड अ कावर्ड ड्रैगन, ये वर्ड बार बार ड्रैगन के लिए आया है, हुज नेम इज़ कस्टर्ड. देन वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, वाई इज़ द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन. ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है बेटा. कस्टर्ड क्राइज फॉर अ सेफ केज बिकॉज ही इज़ अ कावर्ड. ही इज़ कॉल्ड कावर्डली dragon because other characters are defined to be
very brave in the following manner. Belinda is described as brave as full of barrel full of beers. Ink and Blink can chase lions down the stairs. Then Mustard was as brave as a tiger in a rage. Then see, we have question number 3. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Why? Belinda tickled him unmerciful because Custard the dragon was a coward. And he always demanded a safe cage. वो हमेशा बोलता था कि मुझे छोड़ो, I want to be, मुझे बस सेफ्टी से एक जगह रहने दो. That is why all of them made fun of him. खुदकुदी कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, है ना, उसको चिढ़ाते थे. Then we have this question number 4. The poet has employed many poetic devices, and we have discussed all the poetic devices in this poem. For example, clash is tail like iron in a dungeon. The poetic device here is simile. So can you with your partner list some more poetic devices? Yes, I have already discussed all the poetic devices. See, the poet has used many poetic devices to enhance the beauty of the poem. आप बेटा यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी आराम से कर सकते हैं इस वीडियो को देखते देखते. Like to create rhyme with Belinda, he used the word winda. That was poetic license instead of window. Other such rhyming words household and mousehold. Mousehold कभी नहीं आपने सुना होगा, mouse का hole होता है. And wagon with dragon. Not only this, he has also uses poetic device of repetition. Like a little word का बार बार use हुआ है. There is also the use of poetic device of refrain, because we can see the repetition of this line and her really or truly or little pet dragon in many stanzas. Then we have question number 5. Read stanza 3 again to know how the poet describes the appearance of the dragon. Dragon की appearance के लिए question number 5 में थर्ड पैराग्राफ में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि थर्ड स्टेंजा में उसने ड्रैगन की अपीयरेंस बताई है. Like dragon looks like in a way that it has big sharp teeth, spikes on top. This means its skin is pointed on the top. I have already told you. On the lower part it has scales, which are bony plates meant to protect the skin. His mouth has been compared to a fireplace because it is assumed that dragons can release fire from the mouth. Even his nose is compared to a chimney, which is used to pass out the smoke. His feet is like a sharp knife that is a dagger. तो ये पूरी अपीयरेंस है. आप इस तरह से पूरी इसकी ड्रैगन की अपीयरेंस बता सकते हैं. Then question number 7 is, writer use words to give us a picture or image without actually saying what they mean. Can you trace some images? Yes, बहुत देखो imagery तो थी. Like mouth like a fireplace, chimney for a nose, barrel full of beers, a drum, brave as tiger in a rage. He went at the pirate like Robin at the worm. Okay, pirate के ऊपर कैसे अटैक किया? जैसे एक bird जो है वो worm के ऊपर अटैक करता है. सो ऑल दीज आर पिक्चर्स, इमेजेस. जब हम इनकी बात करते हैं ना तो ऐसी एक इमेज हमारे दिमाग में बनती है. इट इज़ इमेजरी. Okay, then the last question is, do you find the tale of Custard the Dragon to be a serious or a light-hearted poem? You can give any answer to support. We have this answer here. Like the tale of the Custard the Dragon is a light-hearted poem. All the characters have names which are rhyming with each other, like Ink, Blink, okay, Custard, Dragon. They all are defined to be brave except the dragon. But in reality, the dragon proves to be the real hero. So when they are attacked by the pirate, the dragon gulps him. Though all the characters were not brave enough to handle the pirate, but still they defined themselves as more powerful than. देखो लास्ट तक इतने ब्रेव नहीं थे, फिर भी अपने आप को ब्रेव मान रहे हैं, है ना. तो ये थोड़ा सा लाइट हार्टेड पोएम ही है. Okay, dragon after the incident is handled by the dragon alone, though the dragon was defined as a coward by the poet right from the beginning of the poem. So it is, in my opinion, this is a light-hearted poem, humorous poem. हालांकि इसमें dragon है, इसमें pirate है, but फिर भी ये एक humorous और अच्छी सी poem है. So students, I have tried my best to explain this poem in a best explaining manner. और मैं होप करती हूँ कि आप सबको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी. एंड वंस अगेन आई वांट टू मेक दिस रिक्वेस्ट कि अगर रियली इफ़ यू फाइंड माय एक्सप्लेनेशन टू बी वेरी हेल्पफुल और आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू स्टूडेंट्स.